वेलकम बैक गाइस टू द तैयारी 360 एस प्लेटफॉर्म। आई एम सौरभ। आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन शक्ति, द न्यूक्लियर स्टोरी ऑफ पोखरण। टुडे इज 11th of May. Today is the day in 1998 when India conducted multiple nuclear tests at the Pokhran range, thus formally announcing India to be a nuclear weapon state. तो इसकी जो हिस्ट्री है, जो पूरी स्टोरी है, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। First of all, nuclear test होता क्या है? Basically, nuclear test is a nuclear explosion or detonation is an experiment conducted to determine the behavior, yield, and effects of nuclear weapons. These tests involve the controlled release of nuclear energy. Controlled होता है ये obviously either underground, underwater, in the atmosphere, in or in outer space. So India has conducted the test underground. United States of America, Russia, France, China, these countries have conducted underwater test as well and atmospheric test as well. Nuclear tests have been conducted by various countries to develop and validate nuclear weapon टेक्नोलॉजी। जो न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी होती है, कोई भी वेपन होता है, उसकी जब तक टेस्टिंग नहीं होती, उसकी रिलायबिलिटी प्रूव नहीं होती। तो रिलायबिलिटी प्रूव करने के लिए टेस्टिंग इज एब्सोल्युटली critical. That's why the test is very important. They typically involve either fission or fusion reactions where atomic nuclei are split or fused together. There are two types of bombs releasing a vast amount of energy in the process. Now, India conducted 5 nuclear tests of advanced weapons design on 11th to 13th of May 1998 at the Pokhran range. First three detonations took place simultaneously at 15:45 hours on 11th of May. इसमें से एक 45 किलोटन का थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस था, 115 किलोटन फिजन डिवाइस एंड 0.2 किलोटन सब किलोटन device. Later on 13th of May, two separate tests simultaneously were conducted. They were also in sub-kiloton range, 0.5 to 0.3 kilotons. Now, why India conducted nuclear test? So that is a very important question. The policymakers, the thinkers, the intellectuals will always ask. They have always asked. तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि स्ट्रेटेजिक जो रेलेवेंस है न्यूक्लियर वेपन्स का 1990s में और अभी भी काफी ज्यादा है। सिंस द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर व्हेन अमेरिका सिंपली ड्रॉप टू वेपन्स एट हिरोशिमा एंड नागासाकी, जो न्यूक्लियर वेपन रेस है, इट सिंपली एक्सप्लोडेड and the Cold War simply intensified it. So Soviet Union acquired the weapon, United Kingdom acquired the weapon, France and later on China, all the five countries acquired the weapon. Later on also multiple countries have tried and they have did successfully. इसमें से इंडिया है, पाकिस्तान है, इजराइल है और नॉर्थ कोरिया भी है। तो स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस बहुत ज्यादा है। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी को अगर प्रोटेक्ट करके रखना है तो न्यूक्लियर वेपन्स एक बहुत ही बड़ा डिटरेंट का रोल प्ले करते हैं। यू कैन सी जस्ट द एग्जांपल ऑफ यूक्रेन जहां वॉर चल रही है। रशिया वुड हैव नेवर इन्वेडेड यूक्रेन अगर यूक्रेन ने अपने वेपन्स जो हैं वो हैंड ओवर नहीं किए होते टू रशिया पोस्ट सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेशन इन 1991। दूसरा जो रीजन था वो था कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर इन 1991। दैट वाज अ वेरी सिग्निफिकेंट मोमेंट इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, द एंड ऑफ कोल्ड वॉर एंड द इमर्जेंस ऑफ अमेरिकन यूनिपोलर मूवमेंट। तो जो सोवियत यूनियन था वो हमारा क्लोज फ्रेंड एंड एसोसिएट था, हमारा एक तरह से क्वासी एलाय था। दे वेयर देयर इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, दे वेयर द बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर और बिगेस्ट मिलिट्री सपोर्टर। जब उनका कोलैप्स होता है तो इंडिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलाई बेसिकली इट इज वाइप्ड आउट फ्रॉम द वर्ल्ड मैप, or that was a very significant movement. An American unipolar movement started immediately after that. So they started putting pressure on the eastward Soviet allies, जिनमें से हमने देखा बाद में इराक के साथ उन्होंने क्या किया, सीरिया के साथ क्या किया, लीबिया के साथ क्या किया और ईरान के साथ वो क्या कर रहे हैं, और इंडिया के साथ भी they started pushing for the plebiscite in Kashmir region. So that was a red line for India. और जो अमेरिकन पुश था for pro-Pakistan, anti-India, that was simply unacceptable to Indian leadership. We have always believed in independent foreign policy and strategic autonomy, and the nuclear weapons were absolutely critical to achieve both these objectives. The emerging nature of threats, say from the north, they were very dominant. Chinese conducted the test in 1964. They became a nuclear weapon state since then. So we have lived with the Chinese nuclear weapons since 1964. However, the complexity of the threat simply kept expanding because of the large arsenal of the Chinese state. उनकी इकोनॉमी ग्रो करने लगी, उनके वेपन्स डिलीवरी प्लेटफॉर्म जो वेक्टर टेक्नोलॉजी है वो ग्रो करने लगी, एंड दे स्टार्टेड colluding with Pakistani's nuclear weapon program as well. तो जो नेचर ऑफ थ्रेट है वो सब्सटेंशियली चेंज हो गया, एंड दिस इज द रीजन Prime Minister Atal Bihari Vajpayee has given to Bill Clinton also when he has written the letter post the test in 1998.
कि नॉर्दर्न थ्रेट हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान हमारे लिए उतनी बड़ी थ्रेट नहीं है, इसलिए हमको न्यूक्लियर वेपन्स चाहिए। क्रेडिबल इंटेलिजेंस थी कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी आ चुकी है, दैट वाज नोन इन 1980s इटसेल्फ, जनरल जिया उल हक विजिटेड इंडिया टू मीट प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी। और 1987 में जो एक बहुत बड़ा ऑपरेशन ब्रास टैक्स लॉन्च किया था इंडियन आर्मी ने जनरल सुंदर जी के नेतृत्व में, जब 5 लाख से ज्यादा इंडियन ट्रूप्स राजस्थान में मोबिलाइज किए गए थे, उसके बाद ये मीटिंग हुई थी क्रिकेट मैच के दौरान। उस वक्त ये बात जनरल जिया ने कही थी प्राइम मिनिस्टर Rajiv Gandhi say that he has given the indication that they have the weapon, and Indian intelligence also has told Indian leadership that they have the weapon. So that's why it was very important to conduct the nuclear test. The failure of global disarmament effort is one more reason. Global disarmament efforts launched immediately न्यूक्लियराइजेशन ऑफ द वर्ल्ड पावर्स इन 1950s itself, लेकिन हमने देखा कि 1990s तक आते आते इसका कुछ भी नहीं हुआ। इट वाज सिंपली अ डेड बॉम्ब, इसका कुछ भी नहीं कर पाए वो। तो डिसआर्मामेंट था। 1995 में एनपीटी इनडेफिनेटली एक्सटेंड कर दी गई, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसमें न्यूक्लियर हैव एंड हैव नॉट्स की जो आइडिया है वो सामने निकल के आ गया। तो हैव जो कंट्रीज थी, P5 की कंट्रीज, वो अपने वेपन्स रख सकती थी, जिसमें अमेरिका है, रशिया है, चाइना है, यूके है एंड फ्रांस है, और हैव नॉट्स में जिनके पास वेपन्स नहीं है। So that was a very important thing for India. Disarmament is going nowhere. So we should go for the nuclear testing so that we can arm ourselves और हमारी जो इंटरेस्ट है, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, उनको हम सिक्योर कर सकें। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एज वेल। नाउ अगर हम न्यूक्लियराइजेशन की बात करें, जो पूरी एक प्रोसेस है जो 1945 से शुरू होती है और पोखरण 2 1998 में आके खत्म होती है, तो इसमें दो फेजेस है, 1945 से पोखरण 1 1974 तक, और दूसरा 1974 के बाद से 1998 तक। तो 1945 में क्या हो रहा है? 1945 में जापान के अंदर वेपन्स का इस्तेमाल होता है। 1945, 46, 47 में दे जापानीज सरेंडर्ड। सो जो प्रेस्टीज एलिमेंट है, जो दूसरी दो सुपर पावर्स निकल के सामने आ रही हैं, जिसमें अमेरिका है, सोवियत यूनियन है, सोवियत यूनियन के पास बम 1949 में आया, तो जो प्रेस्टीज वाला एलिमेंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इट वाज सीन एज द पिनाकल ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस, द वेपन, द साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो पिनकल होता है वो वेपन के सामने, वेपन के माध्यम से हमें दिख रहा था। जो प्रेस्टीज वाला एलिमेंट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन लीडरशिप। वी आल्सो वांटेड टू बी सीन एज इक्वल अमंग द कम्युनिटी ऑफ द नेशन। इंडिया इज ओल्ड सिविलाइजेशन, दैट आइडिया वाज वेरी प्रिवलेंट। पावर वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वी वर वीक, वी हैव गॉन थ्रू पार्टीशन, हमारा जो लैंड था ऑलरेडी वॉर हो चुकी थी, और वर्ल्ड पावर्स के सामने इंडिया की सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी था। और साथ ही साथ जो प्रोलिफरेशन की डिबेट चल रही थी 19 लेट 40s में ही, जिसके लिए होमी जहांगीर भाभा साहब ने एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी कि इट्स लाइक द वर्ल्ड पावर्स आर मेकिंग श्योर कि वेसल जो है उसमें कहीं भी कोई भी होल ना हो। हालांकि पूरी वेसल का जो बॉटम है दैट इज कंप्लीटली ओपन। मतलब प्रोलिफरेशन बहुत ही स्पीड से हो रहा है। यूके के पास बम चला गया, फ्रांस के पास, सोवियत यूनियन के पास, लेकिन जो वर्ल्ड पावर्स हैं जिनके पास हेजेमनी है, दे आर ट्राइंग वेरी हार्ड कि बाकी कंट्रीज के पास वेपन ना पहुंचे। उसके बाद चाइनीज इन्वेजन होता है 1962 में, और इंडिया का जो असेसमेंट है चाइना को लेके कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाता है। चाइना हैज ऑक्यूपाइड मोर देन 90,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ इंडियन एरिया, दे आर स्टिल क्लेमिंग मेनी मोर एरिया, दे हैव कंक्लूसिवली डिफीटेड इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। और उसके बाद जब माओ का जो असेसमेंट था, जो कि हमें एक डिकेड से पता था, जब जवाहरलाल नेहरू साहब माओ से मिले थे, तो ही हैज सेड ही वाज वेरी अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन्स, बट ही हैड सेड दैट 300 million Chinese are striving for a modern civilization, and they may perish also for the greatness or the glory of the Chinese civilization in a nuclear war. So basically he was saying that our country is prepared complete for nuclear annihilation. और उसके बाद 1964 में चाइना ने वेपन टेस्ट भी कर लिया, इमीडिएटली 2 years आफ्टर दे डिफीटेड इंडिया। डिलेमास भी थे काफी ज्यादा हमारे लीडर्स के अंदर, बिकॉज वी वर टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड पीस, मोरल डाउट्स भी थे काफी ज्यादा। तो जवाहरलाल नेहरू के बाद जब दूसरे प्रधानमंत्री साहब आए, लाल बहादुर शास्त्री साहब, तो ही आल्सो हैड हिज ओन मोरल डाउट्स एंड डिलेमास, एंड आफ्टर दैट आल्सो श्रीमती इंदिरा गांधी आल्सो हैड द मोरल डाउट्स एंड डिलेमा, बिकॉज वी वर द लीडर ऑफ नॉन अलायंस मूवमेंट, वी वर सिंपली द मोरल हार्बिंजर ऑफ द वर्ल्ड एज इफ। तो ये एक बहुत ही सीरियस क्राइसिस था, और इंडियन सिविलाइजेशन जो इथोस है वो भी अगेंस्ट जाता है इसके, अहिंसा परमो धर्मा, एज यू मस्ट हैव हर्ड। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था, और इंटरनेशनल कंसिडरेशन भी थे। वी हैव बीन कोलैबोरेटिंग विद द वर्ल्ड पावर्स लाइक कनाडा फॉर पीसफुल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। तो ये भी हमारे अंदर एक कंसर्न था कि हमारे पास रॉ मटेरियल यूक्रेनियम नहीं है। अगर हम दुनिया भर में कंट्रीज जो अगर सप्लाई बंद कर देती हैं
तो what will happen to our weapon program. Plus this weapon program is very expensive. So already we are a developing country, poor country, we have a lot of many people to feed, we have basic necessity. तो weapon program काफी expensive program है. दूसरा जो स्टेज आता है पोखरण 1 से 2 के बीच में, जब पीसफुल न्यूक्लियर टेस्ट पोखरण 1 के अंदर किया जाता है, लेकिन उसके बाद टेस्टिंग को रोक दिया जाता है और इंडिया के ऊपर सैंक्शंस भी लगाए जाते हैं वर्ल्ड पावर्स के द्वारा. हालांकि हमने खुद को न्यूक्लियर वेपन स्टेट डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन न्यूक्लियर जो माइट थी चाइना की, दैट वाज इन फ्रंट ऑफ अस, इट वाज स्टेयरिंग इन फ्रंट ऑफ अस, बट वी लिव्ड विद द न्यूक्लियर माइट इन 1960s 70s एंड 80s. लेकिन जो भुट्टो और जिया का जो ऑब्सेशन था, जिया उल हक द पाकिस्तानी डिक्टेटर, उसके पहले भुट्टो, that was the leader, the civilian leader who was later hanged. So both had the obsession with nuclear weapons, so much so कि भुट्टो ने ये बात भी कही थी कि पाकिस्तान will acquire the weapon, उसके लिए हमें घास की रोटी भी खानी पड़े तो हम खाएंगे. तो जिया was also very obsessed with the weapon. और 1979 में जब इन्वेजन होता है सोवियत यूनियन के द्वारा अफगानिस्तान का, उसके बाद इनको एक ब्लैक कवर मिल जाता है अमेरिका की तरफ से कि आप वेपन्स डेवलप कर सकते हैं, एंड दे डेवलप द वेपन. यूएसएसआर का कोलैप्स बहुत डेंजरस था हमारे लिए, और इट ओपन द कैन ऑफ वॉर्म्स एज इफ. तो हमारे पास सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक चैलेंजेस थे, सो दैट वाज अ वेरी सीरियस एरा एज वेल. सो वी वांटेड कि हमारे पास एक खुद का वेपन हो, और हमने 1971 में देख भी रखा था कि कैसे अमेरिकन टास्क फोर्स जो बे ऑफ बंगाल में आई थी, उसको डिटर करने के लिए सोवियत यूनियन ने न्यूक्लियर अपना आर्माडा भेजा था, जिससे थ्रेट जो है अमेरिका के ऊपर काफी ज्यादा थी. सो आवर लीडर्स आल्सो हैव सीन इट. यूएसए की इरेशनैलिटी वाज आल्सो ए रीजन. सो मच एंड सो कि 1992 में ही लास्ट टेस्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने किया था. मोर देन 1000 टेस्ट दे हैव डन टिल डेट. Last test was in 1992. They were pushing India on Kashmir. They were pushing India on Indian societal matters. तो इंटरफेरेंस उन्होंने काफी ज्यादा किया. तो ये भी एक बहुत बड़ा थ्रेट था कि अगर हमको अपनी सोवरेनिटी बचा के रखनी है तो हमको न्यूक्लियराइजेशन की तरफ जाना पड़ेगा. नाउ टेस्ट के बारे में बात करते हैं. हाउ इंडिया फूल्ड द अमेरिकन्स, बिकॉज अमेरिकन्स हैव द इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी, सैटेलाइट इमेजरी उनके पास अवेलेबल थी, और उनको जब कभी भी टेस्ट का पता चलता तो दे वर ऑब्स्ट्रक्टिंग द टेस्ट. तो इसके लिए डिसेप्शन प्लान बनाया गया. हालांकि डिसेप्शन प्लान में 4 एलिमेंट होते हैं. एक एलिमेंट होता है कि प्लान मस्ट बी बेस्ड ऑन सम पार्ट ऑफ ट्रूथ. दूसरा अपीयरेंस ऑफ लेजिटिमेसी, डिनायल, डिसीट एंड मिसडायरेक्शन. तो ये 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं किसी भी डिसेप्शन प्लान के, और इंडियन लीडरशिप ने बहुत ही बढ़िया डिसेप्शन प्लान बनाया. नाउ ट्रूथ क्या था? पोखरण वाज अ नोन टेस्ट साइट. सबको पता था कि ये टेस्ट साइट है. इंडियन गवर्नमेंट ने पहला टेस्ट भी यहाँ पे किया था. तो यूएस विल कंटिन्यूअसली मॉनिटर पोखरण, जिनके उनके पास सैटेलाइट जो इमेजरी थी उससे वो मॉनिटर कर रहे थे. तो सबको पता था कि टेस्ट अगर होगा तो यहीं पे होगा, इसलिए ये बहुत ही क्रिटिकल था. यूएस वाज आल्सो क्लोजली मॉनिटरिंग द बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट एट द चांदीपुर रेंज. तो उस वक्त तक हमारे पास पृथ्वी 1 लिक्विड प्रोपेल्ड मिसाइल थी, तो अग्नि के ऊपर काम चल रहा था इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट में. तो ये बात भी उनको पता थी कि चांदीपुर जो है वो मिसाइल टेस्ट रेंज है. ये दोनों बात नोन थी अमेरिका के लिए. डिनाइल कैसे किया हमने, हाउ वी डिड दैट? सो हमेंट जो ह्यूमन इंटेलिजेंस एलिमेंट है, एक्सेसिव सिक्रेसी थी इस पूरे प्रोग्राम के अंदर. सो मच एंड सो कि टॉप इंडियन मिनिस्टर्स को भी ये बात पता नहीं थी. केवल पीएमओ जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के जो रैंक थी उस वक्त पे, और कोर जो एक ब्यूरोक्रेटिक सेटअप था. फ्यू न्यू द प्लान. डिसीजन वाज टू टेस्ट वाज नॉट डिस्क्लोज इवन टू सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर. दूसरा इमेजिनरी जो इंटेलिजेंस होती है, एमिंट इसको बोलते हैं. तो पोखरण में कई बार डिमार्क दिया गया था अमेरिका के द्वारा कि भाई आप टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप ऐसा ना करें. सो वी हैड द अंडरस्टैंडिंग कि अमेरिकन्स आर कीपिंग ए क्लोज वॉच एट नाइट देयर. सो डिसेप्शन वाज डन एट द नाइट. हैवी इक्विपमेंट वाज रिटर्न टू प्रीवियस पार्किंग स्पॉट बाय डॉन, और कैमल फाज भी इस्तेमाल किया गया. सैंड नेटिव वेजिटेशन को भी काफी बढ़िया तरीके से इस्तेमाल किया गया. कमेंट जो कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस थी उसको भी काफी ध्यान में रखा गया. एक कलर्ड सिस्टम था, कोडवर्ड सिस्टम था कम्युनिकेशन के लिए, ताकि टेस्ट को डिस्गाइज किया जा सके. जैसे वन शाफ्ट जिसमें वेपन डाला गया उसका नाम था व्हाइट हाउस, दूसरे का नाम था विस्की, और दूसरे का नाम था ताजमहल. डिसीट भी थी. साइंटिस्ट हु हैड टू ट्रैवल टू पोखरण डिड सो इन स्मॉल ग्रुप्स. कई बार कॉन्फ्रेंस सेमिनार के लिए वो जाया करते थे, परिवार वालों को भी नहीं बताते थे, डिफरेंट लोकेशंस जाते थे. फॉल्स आइडेंटिटी के थ्रू अपॉन अराइवल दे वुड क्वाइटली लीव फॉर पोखरण. एट द रेंज दे वोर फटीग सो दैट दे वुड अपीयर इन इमेजरी एज ए मिलिट्री पर्सनल. जब वो असाइनमेंट पूरा करते थे तो दोबारा जहां से वो आते वहां जाते, retracing their path. And the group then would leave for the range. Similar travel measures will be used. Indian government issued several public statements also to reassure the Americans कि वो टेस्ट नहीं करेंगे. There would be no surprise testing. Misdirection. Final टेस्ट जो स्टेप था वो मिसडायरेक्शन था. कैसे अमेरिका का फोकस जो है इससे हटाया जाए. तो हमें इंडियन लीडर्स को पता था कि चांदीपुर में एक्टिव एक मिसाइल रेंज है, लेकिन अमेरिकन का वहां पे इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि सरफेस टू एयर मिसाइल जो है जनरली त्रिशूल वाज देयर इन द न्यूज.
तो हाई इंटरेस्ट आइटम नहीं है। तो ऐसा प्रिपरेशन किया गया जैसा लगा कि अग्नि मिसाइल का टेस्ट किया जा रहा है, अग्नि इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल, जिससे अट्रैक्शन अमेरिका का इंगेज किया जाए। और जो रिकनेसेंस सैटेलाइट्स है अमेरिका की, वो चांदीपुर पे फोकस्ड हो, जो कि ईस्टर्न कोस्ट में है, पोखरण जो है हमारा वेस्टर्न डायरेक्शन में। तो इस तरह से मिस डायरेक्ट भी उनको किया गया। और सक्सेसफुली इंडिया ने टेस्ट कंडक्ट किया 1998 में। अमेरिकन्स वर वेरी सरप्राइज्ड, सो मच सो कि बिल क्लिंटन एंड हिज सीआईए चीफ आल्सो एडमिटेड दैट इंडियंस वर वेरी स्मार्ट इनफ। नाउ आज की अगर हम बात करें, हमारा जो फोर्स स्ट्रक्चर है दैट हैज एक्सपैंडेड सिग्निफिकेंटली सिंस 1998। स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड हम देखें, इंडियन एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के पास डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेक्टर्स हैं। और आज 1998 के बाद अगर हम बात करें, इतने साल बीत गए, 2 डिकेड से ऊपर, सो इंडियन न्यूक्लियर पोस्चर जो है काफी ज्यादा क्रेडिबल है। और इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, जो इकोनॉमिक ट्रेजेक्टरी है, दैट हैज प्रूव्ड टेस्टिमनी टू दिस फैक्ट that the test that was done in 1998 was justified. Now, what is the future ahead in this case? तो इंडिया को एक सस्टेन टू क्रिएट अ सस्टेन क्रेडिबल न्यूक्लियर डिटरेंस पोस्चर एट ऑल टाइम, दिस इज एब्सोल्युटली क्रिटिकल, बिकॉज अमेरिका अगर हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता, विच दे विल नॉट डू बिकॉज वी आर नॉट एन एलाई, तो चाइना और पाकिस्तान का एक्टिव कोल्यूजन है। तो इसीलिए न्यूक्लियर डिटरेंस जो है क्रेडिबल होनी चाहिए और मिनिमम होनी चाहिए। तो इसीलिए जो नेवल प्लेटफॉर्म्स डेवलप किए जा रहे हैं, आईएनएस अरिहंत, जो पूरी एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, दैट इज एब्सोल्युटली क्रिटिकल। नए डिलीवरी वेक्टर्स को टेस्ट करते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि उनकी एक्यूरेसी और सर्वाइवेबिलिटी बनी रहे। तो जैसे अग्नि 1P मिसाइल है, या स्मार्ट वेपन जैसे टेस्ट किए जा रहे हैं, बट दैट इज नॉट फॉर द न्यूक्लियर वेपन यूज। लेकिन ऐसे बहुत सारे वेक्टर्स हैं। अग्नि का जो नया वेरिएंट है, अग्नि 5 का, वो टेस्ट किया गया। तो इस तरह से नए नए डिलीवरी वेक्टर्स को टेस्ट करना बहुत जरूरी है। इंडिया ने रिसेंटली रफाल एयरक्राफ्ट भी इंटीग्रेट किया है इंडियन एयरफोर्स के अंदर, विच आर ऑल्सो डिलीवरी केपेबल प्लेटफॉर्म, वो न्यूक्लियर वेपन डिलीवर कर सकते हैं। वेस्टर्न और नॉर्दर्न थ्रेट्स को डीलिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पाकिस्तान और चाइना विद डिफरेंट बॉल गेम altogether. So northern threat is far more sophisticated, far more credible, far more dangerous compared to the western threat. इनको differently dealing करके इनको differently deal करना जरूरी है अगर आप इंडिया इसको credibly address करना चाहता है। और ये बहुत जरूरी है कि इंडिया strong advocacy रखे for credible and irrevocable global disarmament efforts, because now we can negotiate from the point of strength. Nuclear weapons are the weapons of mass destruction, जब कभी यूज होंगे तो ह्यूमन सिविलाइजेशन के खत्म होने की भी काफी ज्यादा गुंजाइश है। तो इसीलिए ग्लोबल डिसआर्मामेंट इज बेसिकली इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो पिछले 27 सालों की अगर हम बात करें, 26-27 सालों की, तो इंडिया जब ओवरटली न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनता है, सो दैट हैज फंडामेंटली चेंज द डायनेमिक्स इन इंडो पैसिफिक रीजन एंड फॉर द गुड ऑफ दिस country, because India is a civilization state. We have 1.4 billion people, the biggest country on this planet, one of the oldest civilization. So इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वी हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेस इन द वर्ल्ड कम्युनिटी ऑफ नेशन, एंड न्यूक्लियर वेपन आर प्लेइंग ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस रिगार्ड. I hope all of you liked it. Please subscribe to the channel.